Good evening and welcome everyone for this beautiful workshop on autism spectrum disorder. Let's invite Monica ma'am to quickly start with the session. And before we start, I want to give you a short brief about what exactly Counsel India is. So Counsel India is an e-learning platform which provides multiple courses in psychology, counseling, people who aspire to become counselors, people who aspire to become psychologists. We have short-term course, long-term course, diploma course, and likewise multiple courses for non-psychology background people and people who are from psychology background. So let's quickly start with the session. I hope you guys will enjoy it with us. So once again, thank you so much for joining us, and over to Monica ma'am now. Good day. Now, what is autism? Autism spectrum disorder. It's an umbrella term, right? It's not a single disorder because there are 5 types of disorder which is included in ASD. Okay. Now let us try to understand by checking this PPT. The autism spectrum is an umbrella term covering a range of neurodevelopmental conditions referred to as a autism spectrum disorder or ASD. Now, what do we understand by spectrum? Spectrum को हम क्या समझते हैं? क्या मतलब होता है इसका? Yes, anyone? Raisha, do you want to say something? Spectrum क्या होता है? अब we are going to learn about autism, right? But spectrum. Zainab? Ma'am, actually, spectrum can be defined as in which there are many conditions and many types of symptoms a person is, or a child, actually a child is having. Like any disease. I think here spectrum means it's trying to define that there are a lot of things, like different types. Yes. Different types of things. Different types of thing here, but it is doesn't imply literally terms means band of colors. Yes, that is another part. But how we are going to define spectrum here? यहाँ पे हम spectrum को कैसे define करेंगे? Because ASD में one ही disorder नहीं है. We are going to learn 5 types of disorder here. Okay, तो spectrum का नाम जो है ये दिया हुआ है. The word spectrum is defined in the DSM to cover a wider group of conditions and differences in the type. There are differences between those 5 disorders, but there are lots of similarities also. इसमें बहुत सारे जो behaviors है and the signs and symptoms, they are very much similar, but some things are there that are different. इसमें बहुत सारी चीजें भी different है, but इसको as an umbrella term ASD नाम रखा गया है, but इसमें बहुत सारे types है. Okay, जो हमें भी understand करना है one by one. Now, yes, the word spectrum is defined in a DSM to cover a wider group of conditions and differences in the type and perceived severity of symptoms, a trend which developed in the 1980s. It was developed in the 1980s. Otherwise, they have different names, or इसको अलग-अलग इसमें criteria में रखा गया था. An alternative term, autism spectrum conditions, okay, has been used by some to avoid negativity associated with the word disorder. Yes, I think most of you must be knowing that we have omitted the word handicap भी हमने omit कर दिया है, right? क्योंकि differently able है ना, अब mentally retarded बोलते हैं. अब बहुत सारी चीज नेम जो है चेंज हो गया है साइकोलॉजी के, आप लोग ने भी काफी सुने हुए टर्म है ना, learning disabilities and so many names we have changed. Otherwise the mentally retarded, insane, इतने सारे जो terms थे, अब we have what in according to DSM for first of all third पे हम refer करते थे, then fourth and now it's 5. अब बहुत सारे जो है changes को अभी गवर्नमेंट ने भी changes कर दिया है name में भी. Okay, ASD is a complex developmental conditions involving persistent challenges with social communication, restricted interest and repetitive behavior, which we have discussed earlier. अभी हमने भी discuss किए थे. Social communications में क्या आती है? There is
hindrance in social communication. The person is not able to communicate properly with a different individual. आप किसी के साथ वो communication और 2 or 3 groups में भी communication में issues आती हैं, वो हम example के साथ restricted interest. Yes, obviously बहुत सारे जो बच्चे हैं जो ASD है उनको, तो बहुत सारे इनकी जो इंटरेस्ट है, कई सारे जो स्पेशल टीचर्स है वो इंटरेस्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी इंटरेस्ट जो रिस्ट्रिक्टेड है. मुझे 1-2 चीजें ही अच्छा लगता है. ओके, जैसे पेरेंट्स भी व्हेन दे आर नॉट अवेयर कि आपके जो बच्चे हैं उसको दिक्कत है, ASD है, व्हेन दे वर नॉट अवेयर दैट व्हाट दे डू, दे विल इंट्रोड्यूस लॉट्स ऑफ new things, maybe toys, or maybe trying to encourage new develop interest. अब इंटरेस्ट डेवलप करने की बहुत सारी कोशिश करेंगे, बट उनकी जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही restricted and बहुत ही low है. And repetitive behavior, yes, if they are आप उससे बात करते हैं, they will start repeating same word which you have uttered. आपने जो अभी बोला, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, they will start repeating. And not only this, आप कोई उसको हाथ मिलाते हैं, then हाथ मिलाने के बाद then वो भी खुद शायद कोशिश करेंगे. And yes, it also depends कि आपकी जो क्राइटेरिया जो है कहाँ रिपीटेटिव बिहेवियर में जब भी बताया कि आप कभी शेक हैंड्स करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तब कभी कभी बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, कभी कभी करते नहीं है, एंड वो बाद में भी करते हैं. ओके, अभी हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे. सिम्टम्स कैन बी डिटेक्टेड बिफोर द एज ऑफ 2. यस, बिफोर द एज ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से. चेकलिस्ट होती है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन होती है, एट होम एनवायरनमेंट ऑल्सो. अब कोई भी एबनॉर्मलिटी पेरेंट्स को दिख जाती है तो अब वो उसको आप कोई डॉक्टर की पेडियाट्रिशियन के पास ले जाएंगे, एंड देन उसके बाद जो है आपकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव एबिलिटी, जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर्ली हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट वी कैन आइडेंटिफाई. ओके, however diagnosis may not occur until much older, even well into adulthood. बहुत सारे जो अभी इसमें हम अभी बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन जो है कई बार लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, तो यंग एज में उसको कैच नहीं कर पाते इस डिसऑर्डर को, एंड देन आफ्टर टीन एज कुछ बिहेवियर इश्यू है समझ के भी लोग कई सारे जैसे विलेज एरिया में भी स्पेशल स्कूल्स जब खोले तब पता चला कि अच्छा ऐसे भी कोई इलनेस है, ऐसे भी कोई डिसऑर्डर, अदरवाइज दे वर नॉट अवेयर, दे थिंक दैट द चाइल्ड हैज लैक ऑफ माइंड, उसके दिमाग कम है, बुद्धि कम है, इस तरीके की टैग दिए जाते हैं. ओके, तो the signs are many and can include specific or repeated behavior, enhanced sensitivity to materials, being upset by change in routine. Yes, बहुत ज्यादा बच्चे जो है ASD के बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत होती है जब उनकी लाइफ में कोई रूटीन चेंज होती है, जो डेली रूटीन से, इफ दे आर अटेंडिंग अ स्पेशल स्कूल एंड फॉर एग्जांपल द बस ड्राइवर केम 20 मिनट लेट और 30 मिनट, बट ही इज नॉट अवेयर कि 20 मिनट लेट हुआ है, नहीं लेट हुआ पता नहीं, बट वो वेट कर रहे हैं, काफी देर तक नहीं आए, एंड देन कुछ उसको फील होता है कि ये अभी अंकल आए नहीं, या इफ ही कैन स्पीक देन ही विल स्टार्ट, एंड जो नहीं बोल सकते, ओके, रिपीटेड वर्ड्स भी रिपीट नहीं कर सकते, दे विल थ्रो टेंट्रम्स और मे बी गुस्सा हो जाएंगे, कुछ बोलना शुरू करेंगे, आवाजें निकालना शुरू करेंगे. दिस ऑल आर केस स्टडी जो मैं अभी आपको साथ में ही डिस्कस कर रहे हैं. ओके, appearing to show reduced interest in other, yes, they don't have any kind of interest in others, nahi hai, avoiding eye contact and limitation in social situations and with verbal communication. Okay, yes, this is the umbrella, and now let us try to understand or autism spectrum disorder. Okay, तो इसमें हम autistic disorder देख सकते हैं, Asperger's disorder, childhood integrative disorder, Reid's disorder, pervasive developmental disorder not otherwise specified. Okay, these 5 things we are going to understand today. Okay, मैम ADHD नहीं आएगा?
बेटा इसमें ASD के अंदर अभी इसी के ही बारे में बताया जाएगा। ADHD हमारे कोर्स में you want to know, then I'll be there, I'll help you out. मैं आपको बता दूंगी, एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन जो हमारी जो ASD है तो इसी में ही मैं ये है आज का जो प्रेजेंटेशन है, आज का जो लेक्चर है, ये इसी 5 पॉइंट्स पे है। ओके, नाउ 1 सेकेंड, अभी जैनब प्लीज चेक सारे स्टूडेंट्स, आगे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप देखिए जरा, किसी ने आना तो नहीं है, आई कंटिन्यू करते जा रहे, एक बार देखिए। मैम देयर आर 14 पार्टिसिपेंट्स। 14 है, ओके, 14 पार्टिसिपेंट्स, इसमें मैं हूँ एक, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आ गए हों, कल भी 14 ही दिखे थे शायद। ओके, द वर्ड ऑटिज्म इज यूज्ड बाय 𝐊𝐿 to describe a subset of schizophrenic patients who were especially withdrawn and self-absorbed in 1943. See, इतने साल पहले जब स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में तो पता चल गया, ओके, और कई सारे जो है मेंटल इलनेस के बारे में पता चल चुका था, तब ऑटिज्म भी पता चल गया था, लेकिन उसको क्या नाम दे, सिम्टम साइंस पता चल गया था, लेकिन उसको क्या नाम दे वो किसने दिया था, इट वाज 𝐊𝐿, ओके, टू डिस्क्राइब द सबसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हु वर स्पेशली विथड्रॉन एंड सेल्फ एब्जॉर्ब। किस पे इन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया था, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के लिए यूज, क्योंकि उनकी जो सिम्टम्स है वो विथड्रॉन रहते हैं, सोशली विथड्रॉन, ओके, एंड सेल्फ एब्जॉर्ब, ओके। American child psychiatrist 𝐊𝐞𝐲 𝐁𝐞𝐽 publishes a paper describing 11 children who were highly intelligent but display a powerful desire for aloneness. He later named this condition early infantile autism in 1944. Okay, ये history है starting की. A German scientist named Hans Asperger describes a milder form of autism now known as Asperger's syndrome, 1967. Okay, psychologist Bruno Bettelheim popularizes the term refrigerator mother cause autism by not loving their children enough. Okay, जो scientists and the neurologists and psychologists, इनकी जो इन्होंने जो उस टाइम पे जो साइन एंड सिम्टम्स उन्होंने ऑब्जर्व किया, ओके, उसकी नेम पे उसने अपनी नेम पे ये, जैसे एस्पर्गर सिंड्रोम जो है अभी एक ऑटिज्म के ASD के एक पार्ट है, ओके, अम्ब्रेला टर्म के अंदर, तो ये नेम रखा गया है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर etiology and pathogenesis, genetic factors, immunological factors, pre and perinatal factors, कोमॉर्बिड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जेनेटिक फैक्टर्स में क्या आता है, कई बार आप लोग ने सुना होगा कि जेनेटिक फैक्टर्स में क्या आता है कि अगर किसी पेरेंट्स को कोई भी ऐसे जेनेटिकल इशू, मतलब कोई इलनेस है, तो यही लगता है कि इनहेरिट हो जाएगा, या होता भी है, ओके। तो वैसे ही या किसी सिबलिंग को स्किज़ोफ्रेनिया है, या मदर को है, या फादर को है, देन चांसेस जो है हाई है, ओके। तो वैसे ही द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर 20 to 30 fold more likely to be affected, okay. Now 15% of cases non-genetic mutation, in most cases its expression is dependent on multiple genes. इसमें जेनेटिक फैक्टर्स में बेटा जैसे रेड सिंड्रोम में जो एक्स क्रोमोसोम है वो फ्रजाइल मानते हैं, एंड म्यूटेशंस की वजह से ये माने जाते हैं। एग्जैक्ट जो है कॉज जो है किसी का क्या है वो पता नहीं होता, ओके। फैमिली स्टडीज में देखिए इंक्रीज रेट्स ऑफ ASD in siblings of an index child as high as 50% in families with 2 or more children with autism spectrum disorder, okay, family studies में भी siblings of a child with autism are more at increased risk of impairments in communication and social skills even when they do not meet criteria for autism spectrum disorder. क्यों है, जैसे yesterday also we have discussed, like example है siblings of a child autism, okay, अगर किसी child को किसी child को
कोई नाम ले लीजिए। यस, राम को अगर वो ऑटिस्टिक है तो जो यंगर चाइल्ड है, ओके, उसकी कम इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होंगे, ठीक होंगे, एवरीथिंग इज फाइन। बट कभी कभार बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं स्पेशल स्कूल्स में, जहाँ पे मैं वॉलंटियर कर रही थी, तब वहां पर भी ये था कि जो बड़े बच्चे हैं उनको जैसे ये ऑटिज्म है, तो छोटे वाले बच्चे को थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन पे प्रॉब्लम आती है। और ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबके साथ है। तो मोस्ट ऑफ द स्टडीज अप्रूविंग है। ओके, व्हाई? बिकॉज जो आप होम एनवायरनमेंट में बच्चे लर्न करते हैं, एंड जो आपकी ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो है, इफ दे आर नॉट वेल एजुकेटेड और ऑफ अ लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, then you can understand the management will be very difficult। वो जब मैनेज करते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड ऑल। एंड देन बिहेवियरल इश्यूज जो है, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, जैसे अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में भी कई एएसडी बच्चे थे, तो उनके भी जो सिबलिंग्स है उनके साथ भी बहुत इश्यू होता था, जबकि उनकी कुछ भी कोई इश्यू या ये लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं था, बट कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाते हैं। ओके, एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा? प्री एंड पेरेंट, जैसे कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी हेल्थ जो है, मैटरनल हेल्थ पे भी बहुत डिफर करता है आपकी ये इलनेस। जैसे व्हेन द चाइल्ड वाज कंसीव्ड, अगर मदर को कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या कोई सीवियर कोई डिजीज हो जाता है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो जाता है, दैट टाइम वेरियस काइंड्स ऑफ मेडिसिन विल बी यूज्ड टू क्योर द इलनेस ऑफ हर मदर और हिज मदर, राइट? दैट टाइम ये फैक्टर भी मैटर करता है कि इतनी प्रॉब्लम्स जो है के साथ हो जाता है। एंड एक और चीज है कोमोर्बिड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके साथ साथ जो है, साथ साथ कुछ और बीमारी भी आते हैं जो अभी बताएंगे। जैसे इन बच्चों के साथ एएसडी होने के साथ साथ कभी कभी किसी किसी बच्चे को एपिलेप्सी भी हो जाता है। जैसे 1 सेकेंड, अच्छा वो पिक्चर डिफरेंट है। एनीवेज, ये किसने भेजा है मैसेज? I'll explain, okay? I think there is one picture. 1 second. Yes. Now let us try to understand with the help of this picture. आप इसमें देखिए, अब ASD के जो pictures you can see here, okay? Learning disability, okay? Delayed speech development, OCD, hyperactive, dyspraxia, okay? And then ADHD, जो ये साथ में कोमोर्बिड है। डिप्रेशन, नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्रेफर टू प्ले अलोन, स्लीप प्रॉब्लम, एपिलेप्सी एंड रिजेक्टिंग cuddles. Why rejecting cuddles? Because they want to what? वो अलग से रहना चाहते हैं क्योंकि they are not emotionally attached to anyone. Okay? It depends on the severity. मैम एपिलेप्सी एक बार थोड़ा सा बता देंगे? इतना जो है दिक्कत जब आ जाती है ऐसी इलनेस पे, कि अभी मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे थे। द चाइल्ड वाज ओनली 10 years old, ओके, और उसको एएसडी था। देन उसके बाद क्या होता है कि आप जो है उसको जैसे स्कूल में ही था, मैं उस दिन विजिट पे ही थे, तो अचानक से वो बच्चे को चक्कर आ गया एंड देन एपिलेप्सी है, उसको प्रॉब्लम है बताया गया था। आई जस्ट न्यूली ज्वाइन, ओके, तो ज्वाइन ही हुआ था, तब पता चला था कि इसके साथ ये साथ में पेरेंट्स को यही लगता था कि वो उसको खाली एपिलेप्सी है, एएसडी नहीं है, एंड ही वाज एक्चुअली न्यूली एडमिटेड आल्सो। ओके, ये यस ज़ैनब। मैम एपिलेप्सी में मोटर एक्टिविटी वो होती है ना, कम होती है?
यस, जब आप एपिलेप्सी में क्या होता है, आप गिर के चक्कर खा के आपकी जो है थोड़ी देर के लिए, जैसे जैसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दौड़े पड़ते। 1 सेकेंड बेटा, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके ओके, नाउ हम कहाँ पे थे? तो आप ये देख सकते हैं, ये इश्यूज जो है इनके साथ कंबाइन कोमॉर्बिड होते हैं, जहाँ पे अभी मैंने बताया था कोमॉर्बिड एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, कोमॉर्बिड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये आपके इस पिक्चर्स में आ जाता है। ओके, ये ज़ैनब, कैन यू रीड आउट दिस वन, लर्निंग डिसेबिलिटी? ये पिक्चर जो एक बार रीड आउट करेंगे। The first one is learning disability and delayed speech development, obsessive compulsive disorder OCD, hyperactive dyspraxia, attention deficit hyperactivity disorder ADHD, depression, not responding, prefer to play alone, sleep problem, epilepsy, rejecting cuddles. यस, नाउ इसमें डिस्प्रैक्सिया में कई सारे ऐसे केसेस देखे थे, जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके एबनॉर्मल पोस्चर हमेशा रहते हैं, दे आर परफेक्टली नॉट एबल टू सिट प्रॉपर्ली इन द क्लासरूम। अब क्लास में बैठते हैं, दे लाइक द लिम्स आर जस्ट डेंगलिंग, अब हाथ पैर जो है वो फ्री छोड़ देते हैं, एंड देन व्हेन आप उसको बोल देते हैं कि आप ठीक से रखिए या कुछ यू जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट, देन फॉर अ सेकेंड वो थोड़ा सा ठीक रहते हैं, बट फिर भी अब बस में, जैसे आप बस में व्हेन यू क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ द बस आल्सो, दे आर नॉट एबल टू क्लाइम प्रॉपर्ली। व्हाई? बिकॉज there is difficulties in coordination. Okay, coordination and movement, उनको coordination and movement में प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से वो बस में भी ठीक से नहीं चढ़ना उतरना, जो है इसमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। ओके, एंड यस, वी हैव इवन लेट टू प्ले द कीबोर्ड्स में, जो कीबोर्ड जो आप प्ले करने के लिए पियानो के जो कीबोर्ड है हम देते हैं, तभी ये दे हैव डिफिकल्टीज। ठीक है, कि कौन सा की प्रेस करना है, अनटिल एनालिस प्रॉम्प्ट देते हैं, बच्चों को ज्यादा समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे जो हाइपर एक्टिव है वो तो एकदम से नॉट नोइंग कि क्या म्यूजिक आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ओके, सम साउंड इज देयर, दे स्टार्ट प्लेइंग। ओके, और ओसीडी जो है कॉम्बिनेशन है, इसमें भी कई बच्चे जो है ऑब्सेस हो जाते हैं कोई भी अपनी चीज को लेके, अटैचमेंट बहुत ज्यादा, लाइक फॉर वाटर बॉटल जो है, ये मेरी वाटर बॉटल पॉसेसिव होते हैं, और अनटिल एंड अनलेस वाटर बॉटल को बंद कर दिया है, मैं दोबारा से बंद करूंगा, जबकि बंद करना नहीं आता, दे स्टार्टेड अटैचिंग द बॉटल एंड द कैप बार बार ही, एंड उसके बाद जो है दे फील सैटिस्फाइड। ऐसे भी चीज देखे हैं हमने, मैं हम बताते हैं। नाउ टर्मिनोलॉजिकल कंसेप्चुअल इश्यूज। ओके, मोस्ट कॉमनली ASD is accompanied by developmental delay or intellectual disability. However, a significant portion of individuals with ASD have average to above average intelligence. Okay, medical comorbidities में include sleep disorder. Yes, the parents were complaining. बहुत ज्यादा बच्चे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये रात को नहीं सोए थे, that's why वो स्कूल में आने के लिए लेट हो गए, because van uncle has to wait for him for more than 20 minutes. Okay, gastrointestinal disorder, yes, these are observed. Psychiatric conditions and seizures. Okay, socio-economic considerations, ये ऐसा यहाँ पे जो आप यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे डेवलपमेंटल अकॉम्पमेंट कहाँ हुआ है, और सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस जो है कहाँ पे आते हैं, ये किस किस को हम कंसेप्चुअल इश्यूज देखेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कुछ बैकग्राउंड होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट होते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी तरीके से देखना या प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, तो इससे भी और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ती है। अफेक्ट इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लेवल। यस,
किसी को भी हो जाता, किसी को भी होता है. Parental education level continue to be related to age of diagnosis. Diagnosis also delayed for children in the Medicaid system. Okay. Now, types. Yes, Zainab, do you want to read out types? 5 related neurological and developmental disorder or ASD includes. Yeah, Anyone ma'am. want to read out? And Zainab ke alawa your students be, if they want to read out, they can read out. Yes, anyone can read it. Autism, a severe form of ASD, pervasive developmental disorder, not otherwise specified, PDD-NOS, a diagnosis made when a child has symptoms of either of autism or Asperger's syndrome, but does not meet the specific criteria for either of them. Asperger's syndrome, a milder form of ASD, Rett syndrome. It's a rare and a very severe neurological disorder that occurs more commonly in females. Childhood disintegrative disorder, CDD, a rare and severe developmental disorder. Thank you. Now 5 types we are going to discuss. इसमें first one we can see autism, a severe form of ASD. Now the second thing, pervasive developmental disorder not otherwise specified. Okay, इसमें PDD, this is the short form and not otherwise specified. इसमें क्या है? The diagnosis made when a child has symptoms of either of autism or Asperger's syndrome. ठीक है, जो symptoms है वो autism के या Asperger's की syndrome जो है होना चाहिए, and but does not meet the specific criteria for either of them. Okay. Now, Asperger's syndrome में क्या mild form of ASD. I think Asperger's syndrome के बारे में काफी सब लोगों ने सुना होगा. Like they are, you know, independent भी है, कुछ चीजों के लिए independent है. Okay. Socially आप ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, वो अलग चीज है, लेकिन वो अपने आप थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर वो लोग ज्यादा इंडिपेंडेंट भी है. ओके, अभी हम देखते हैं आगे. रेट सिंड्रोम, इट्स अ रेयर एंड वेरी सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अकर्स मोर कॉमनली इन फीमेल्स. ओके, childhood disintegrative disorder, CDD, a rare and severe developmental disorder. Okay, these 5 parts are included in ASD umbrella. ओके, ASD की अम्ब्रेला में ये 5 टाइप्स जो है ये इंक्लूडेड है. ऑटिज्म में देखिए, दिस आर द सिम्टम्स, साइंस व्हिच वी कैन ऑब्जर्व. डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, स्पिन ऑब्जेक्ट्स, प्रेफर टू प्ले अलोन, रिजेक्टिंग cuddles, स्लीप डिसऑर्डर. ओके, टॉप अर्ली साइंस. टॉप अर्ली साइंस में ये बिफोर द एज ऑफ 2 साल से पहले की जो बच्चे, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, यू कैन सी, आप देख सकते हैं इसमें कुछ बच्चे जो है इन 2 years उनके वोकैब जो जितना एज अ नॉर्मल चाइल्ड का होना चाहिए उतना नहीं होता. एंड व्हेनेवर दे आर इंट्रोड्यूस्ड विद एन टॉय और एनी items to play, what they do, they started spinning. and जैसे मान लीजिए आपने एक टॉय ट्रक दिया है या टॉय कार दिया है, what they will do, they will start playing with that minute this thing, wheels पे ही वो ज्यादा फोकस करेंगे और wheels पे ही they will start spinning and playing. Okay, and now they are not interested in what, आप खुद सबके साथ एंजॉय करना पसंद नहीं करते, साथ में नहीं खेलना पसंद करते. वो खुद ही अपनी टॉय आइटम्स या जो भी आप स्क्रिबलिंग के लिए देंगे या कुछ जो आपको कुछ भी जैसे खाने के लिए भी देंगे तो दे विल डू व्हाट, आप खुद ही खाना एंड बैठना पसंद करते हैं. ओके, हाइपर एक्टिविटी, यस, दिस बिहेवियर आर वेरी कॉमन. कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी, जैसे जब अभी बताया था मैंने, जब रूटीन, व्हेन द रूटीन आर चेंज्ड, दे गेट वेरी aggressive and hyperactivities. Like for example, they start running. अब घर के अंदर भागना स्टार्ट कर देंगे या स्कूल कैंपस में ही भागना शुरू कर देंगे. इफ उसकी जो नॉर्मल रूटीन जो है, जो एक सेम जो आपकी
पैटर्न है क्लासेस में भी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोई कोशिश करता है एंड इट विल हैपन। रिजेक्टिंग गर्ल्स, यस, बच्चे जो है पसंद नहीं करते कि आप उसको इमोशनली बहुत ज्यादा अफेक्शन शो करते हैं, पकड़ना, आपको गले लगाना, दे डोंट लाइक। ओके, स्लीप प्रॉब्लम्स, यस, नींद से भी, नींद में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कुछ बच्चे होती हैं तो उनको रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं बिकॉज दे सफर फ्रॉम इंसोम्निया। काफी सारे बच्चे की केसेस पेरेंट्स बताते हैं कि उनको इंसोम्निया है, वो सो नहीं पाते हैं रात को ठीक से। नाउ इन ब्रीफ, autism, a characteristic behavior autism begins early in life, usually in the first year. The child's parents are usually the first to notice this behavior but not recognize them as a problem. This is what I've told you earlier. अभी कि कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है यस ये थोड़ा सा लेट बोलता है, ओके, या ये थोड़ा सा इसकी जो है सब कुछ स्लो चल रहा है, तो ये ऐसे नॉर्मली दे स्टार्ट थिंकिंग इट्स नॉर्मल टू बी टू लर्न इन अ स्लो मैनर, वो ठीक लगता है उनको, बट जो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होते, they are not able to recognize. The following is a list of conditions that occur more commonly in autistic children than in typical children. Let us compare. Delivery associated risk factors में क्या, breech presentation of the baby. Breech presentation मतलब आप लोग जानते होंगे, जब बर्थ के टाइम पे जब नॉर्मल आपको जो पोजीशन होना चाहिए वो ब्रीच में होते हैं, दैट मीन्स जो लोअर लिम्स पोर्शन है वो आपकी बर्थ के टाइम पे जो नहीं होना चाहिए लोअर पार्ट पे वो हो जाते हैं हेड की जगह। ओके, लो एपगर स्कोर एंड इंडेक्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द कंडीशन ऑफ अ न्यूबॉर्न 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। जब बर्थ के 5 मिनट्स के बाद बच्चे की आप एक स्कोरिंग लेते हैं जिसमें आप बच्चे सुन सकते हैं, जब आप फिंगर टैप करते हैं एंड देन आपकी पेडिट्रिशियन के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड वहां पे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होती है वो आप चेक करते हैं 5 मिनट्स आफ्टर बाद, उसमें लो आता है। एंड देन प्रीमेच्योर बर्थ होती है, बर्थ बिफोर 35 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कई जो बच्चे जो हमारी स्पेशल स्कूल में हैं, कई बच्चे जो है लाइक फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 50 12 स्टूडेंट्स वर ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ से ही हुआ है। Okay, now parental history of mental illness, schizophrenia, like psychosis, affective disorder, which includes some psychosis, depression, and bipolar disorder. Okay, now childhood developmental history, rapid and excessive growth in head size during the first year of life. There is one student in our school, special school, उसका भी जो head है excessively size big है उसका भी, तो this is one of the case studies. ओके, उसकी जो पर्सनल इसकी जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री में ये हमने देखे गए थे। नाउ अगेन साइन्स ऑफ ऑटिज्म, issues with communication, child doesn't respond his or her name, yes, prefers to be alone, trouble interpreting what others feel, repetitive movements or speech patterns, like for example we used to ask how are you, how are you, अब हिंदी में पूछते हो कैसे हो, उसका नाम लेके राम कैसे हो, देन वो भी खुद वही लाइन दे ट्राई टू कॉपी एंड हमें फिर दोबारा से पूछते हैं, नॉट लाइक कि मैम हाउ आर यू, ऐसे नहीं, राम राम हाउ आर यू ऐसे। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, सेंसिटिव टू लाउड नॉइजेस, यस, दे डोंट लाइक लाउड नॉइज एंड ऑल। जैसे स्कूल में क्रिसमस पार्टी कराया स्पेशल स्कूल में, तो किसी बच्चे के लिए माइल्ड म्यूजिक ही लगाते हैं एंड कभी किसी ने लाउड म्यूजिक लाउड कर दिया, नॉइज, उसको इसके लिए वो दैट इज नॉट अ म्यूजिक, दैट इज अ नॉइज फॉर देम। ओके, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। एसेंट्रिक वे ऑफ मूविंग, यस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ दे मूव। नाउ सोशल स्किल्स, people with autism might not interact with others the way most people do, or they might not be interested in other people at all. Okay, autistic children may resist cuddling by their parents, which I have already shown in that picture, may appear indifferent to the ongoings in their environment, yes, display a lack of interest in toys, may be unresponsive to others, that they appear to be deaf, yes, lots of children are there who is unresponsive to others, like uske koi friend hai, his
touching him and patting him and trying to say something, but they appear to be adept. They doesn't give any kind of response. Okay, then not make eye contact and may be content to be alone. As they grow older, they might appear to lack empathy or have trouble understanding other people's feelings, such as pain or sorrow or taking about their own feelings. May fail to establish friendship with children the same age, may show a lack of interest in sharing enjoyment, interest, or achievements with other. This is what we call reciprocity. Okay, इसमें आप जो है अब कुछ एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है कॉमन एंजॉयमेंट वो है, टॉपिक है, कॉमन एंजॉयमेंट एक फेज है, वो दे डोंट लाइक टू शेयर और इंटरेस्ट नहीं है। और जो अचीवमेंट जैसे साथ में जैसे हमने बच्चे को इसमें रेस कराया था, रेस जो कराते हैं, ठीक है, दौड़ लगाते हैं, तब भी ऐसे बताते हैं कि आप तीनों फर्स्ट आएंगे तो अच्छा है, लाइक प्रॉम्प्ट भी देते हैं, यू हैव टू गो, यू हैव टू रन इन दैट ट्रैक, बट उसमें उसको जो अचीवमेंट है वो उनको अच्छा नहीं लगता और शेयरिंग जो है उतना पसंद नहीं है। स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एंड इम्पेयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ ऑटिज्म, राइट। कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं बच्चे अच्छी तरह से, व्हाट दे वांट टू, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे वांट टू से और व्हाट दे वांट टू एक्सप्रेस अबाउट अपनी ही फैमिली मेंबर्स के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं तो वो impaired है already, they are not able to communicate. The content of the speech may be limited to a few subjects or just a few words. Yes, few words कुछ बच्चे कुछ बोलते हैं, बहुत कम जो उसकी पसंद की है, या जो होम लैंग्वेज होती है, होम लैंग्वेज इन द सेंस की जैसे पानी, पानी है जो वो अपने मदर को या केयर गिवर जो है उसको पूछते हैं पानी, खाना, या कुछ जो है अब जो बता पाते उतना बोल पाते हैं। About see, the third point is very important. About 40% children with autism do not speak at all. Yes, there are 2 children in our school वो जो बिल्कुल भी नहीं बोलते। Okay, they when they get disturbed they scream. Okay, then when they hear any kind of disturbing noise like which I've told about the Christmas party and all, तब जाके बच्चे जो है स्क्रीम करते हैं, वो स्क्रीम भी हमें सुनाई नहीं देता ठीक से। Now echolalia is a medical term, others are echolalia. Okay, echolalia is a medical term for involuntary and meaningless repetition of words or phrases that autistics may say sometimes hours before the event. Delayed echolalia can occur days or weeks after hearing the words or phrases. I have seen कुछ बच्चे पेरेंट्स बताते हैं कि आप लोग के कुछ वर्ड्स बार बार आप लोग ने बोल के कोई सॉन्ग कोई सिखाए होंगे, and then what happened, sometimes this will just be an echoed word. Some autistic will mimic whole sentence or even conversation. They may even use convincing accent and the voices of the people. For example, if somebody said to the person with cholera, how are you, they would respond, how are you. जैसे कुछ पेरेंट्स ने बताया कि आपकी कोई क्रिसमस पार्टी में कोई सॉन्ग कुछ बार बार कुछ वर्ड्स जो है वो जो है उस बच्चे ने पकड़ लिया, एंड देन वही घर में आके नेक्स्ट डे उस टाइम कुछ नहीं बोला, नेक्स्ट डे जब स्कूल में आया तब बताया कि घर में जाके बोला, एंड देन स्कूल में भी सबके सामने कुछ ना कुछ ये बच्चे बोलने लग गए थे। एंड जब कुछ बच्चे को आप पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, आपने ब्रेकफास्ट किया, देन दे विल रिपीट द सेम lines or words. If they're not able to catch the correct this one the complete lines, तो कुछ word जो उसने सुना है जो familiar है वो बोलेंगे। Repeated behavior, people with autism might have a fascination with repetitive movements just such as spinning wheels, turning on off lights or slamming doors. Yes, this kind of behaviors जो आपके symptoms है बच्चे के जो movements है, कई सारे जो है हम रोज देखने को मिलते हैं ये ऐसे बच्चों से। ओके, लाइट ऑन ऑफ करेंगे, फैन ऑन ऑफ करते रहेंगे स्विच को, जहां जहां उसके जो दिखते हैं डोर को बंद करेंगे बहुत जोर से फिर खोलेंगे। दे मे आल्सो एक्सिबिट स्टीरियोटाइप फिजिकल बिहेवियर लाइक दिस बॉडी इंक्लूड बॉडी रॉक
हैंड फ्लैपिंग एंड और abnormal postures such as toe walking भी कई बच्चे देर जब योगा सिखाने के लिए लाइक मेडिटेशन के लिए बच्चों को चुपचाप बिठाने के लिए वहां पे स्कूल में किए जाते हैं, तब ये दे स्टार्ट डूइंग toe walk, अब abnormal postures like they will start laying down, जब बताया है बैठना है, that no, अब हाथ उठाएंगे, then पैर उठाएंगे, और rigid adherence to routines. Autistic children enjoy a set of routine. Okay, variations from that routine may upset or frighten them. तब जाके they get disturbed if there is some changes. Like for example, if they love coming to the special school, वो रोज आते हैं, and then जैसे बीच में ये अभी जो पैंडेमिक में भी वेकेशंस काफी सारे जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थे, दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर कंप्लेनिंग ये स्कूल कब खुलेंगे, बिकॉज every child was disturbed at all the normal children and all this one which I'm saying about this autistic children के भी कई सारे पेरेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे, बिकॉज वो रूटीन जो है वो फॉलो करना चाहते हैं कि उठ के जाना है, अब जाते नहीं है, घर पे बिठाया, and then it took some time to come to back and normal मतलब ऑनलाइन, ओके, घर में ही रहना, उनको बार बार समझाना पड़ता था. Preoccupation with parts of objects. Yes, those with autism often seems fascinated by parts of an object rather than the whole object itself. This would include such as wheel of a car rather than a car itself. Yes, जब टॉय कार, टॉय बस या कोई भी टॉयज या देते हैं आप, इवन आप डॉल देंगे, दैट टाइम द फोकस विल बी ऑन आईज. अब आप आईज को ही बंद करेंगे हाथ से, फिंगर से आप खेलते रहेंगे, या कार खेलने की जगह you will ask the child to play with the कार को खेलो, आप अपनी this one फ्लोर पे ही चलाने की कोशिश करो, but they will not do, they will keep their mind on that व्हील को हाथ फिंगर से घुमाते रहेंगे, एंड टॉय में भी आइस के साथ खेलते रहेंगे, जो मूव हो रहा है उसमें, जो आपके फिंगर से मूव कर पा रहे हैं आप. Regression of development. Some children, the first sign of autism may appear during infancy, and a disorder usually diagnosed by the age of 3. Okay, in other children, the development appears normal until about 2 years old and regresses rapidly. Inconsistent neurological development. इसमें क्या है? Children with autism develop differently from other children. Typical children develop full range of neurologic skills such as language, motor coordination, cognitive ability, social skills at about the same rate. But autism children में ये बिल्कुल different है. Okay, yes everyone, आप लोग को is it clear to everyone ना? See, जब मैंने slides बनाया, I was just typing everything like a book. Okay, Zainab, Raisha, Tavisha, hello. Yes, everyone there? Yes, ma'am, clear. Okay, तभी मैंने सब only points में क्या होता है कि explanation में कभी मिस हो जाता है, तो आप खुद भी familiar हो जाएंगे, जो ब्लैक कलर के जो फॉन्ट थे आपसे पता चल जाएगा. आप लोगों को पीपीटी भी मिल जाएगा after the classes. Okay, now number 2. आप किसको रीड आउट करने का मन है? If anyone interested, या shall I continue? चलो, let me continue. टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेशन वो हो जाता है. Pervasive developmental disorder not otherwise specified. NOS में आप देखिए not otherwise specified. What does this mean? It's a developmental disability that shares many characteristics with autism. We have already understood ASD में spectrum, Autism Spectrum Disorder. इसमें 5 types जो है, इसमें क्या बताया था? That shares many characteristics with each other, but somewhat different in some signs and symptoms. Okay, जो अब criteria कुछ में different है, but काफी सारी चीजें share करते हैं इसमें. Okay, PDD or NOS probably the most common diagnosed condition with the ASD and is sometimes referred to as atypical personality development, atypical PDD or atypical autism. Okay, children are diagnosed with PDD and NOS when they exhibit significant difficulties in the area of social interaction. ये आपके autism में भी है. Verbal communication, yes, उसमें है. Non-verbal communication, gesture, eye contact and play. Okay, but now try to understand this thing. But are too social to be considered fully autistic or any other
क्या है ये explicitly defined PDDs, okay, such as Rett syndrome और childhood integrative disorder. इसमें आप देखिए जिस इसमें जो एक डिस्टिंक्शन वाला एक डिफरेंट पॉइंट क्या है इसमें, इसको फुली ऑटिस्टिक और अदर जैसे रेट सिंड्रोम और चाइल्ड इंटीग्रेटेड डिसऑर्डर में सिम्टम्स है उनकी तरह हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज something different. That is why PDD-NO is sometimes considered a sub-threshold condition. Sub-threshold condition क्यों? That means इसमें आप जो है पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, ओके, कि और सेम है और ऑटिज्म से सेम आप बोल नहीं सकते, ओके, because the point is too weak to produce the response. Response of what? Response of being autistic. Okay, the symptoms of PDD are usually manifest by the age of 3. आप देखिए by the age of 3 start होता है, okay. Studies have demonstrated that these children usually diagnosed later and receive treatment later than other autistic children. Okay, इसमें आप स्टार्टिंग में बच्चे जो है आप बिहेवियर जो है नॉर्मल रहेंगे एंड कुछ बच्चे जैसे क्लिंगी होते हैं, कुछ बच्चे जैसे अग्रेसिव होते हैं, उस तरीके की हमें पता चलेगा, बट ये बात में भी इतना भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते इनको, ओके. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन. नाउ Asperger's syndrome or Asperger's disorder is a neurological disorder that may be a part of the autistic spectrum of disorders. Children with Asperger's syndrome have characteristic behavior that can cause disabilities that range from mild to severe. Okay, from mild to severe. आप देखिएगा इसको from mild to severe. Now let us try to understand. Asperger's syndrome sometimes referred to as high functioning autism. It was named for a Viennese physician Hans Asperger. Asperger's syndrome diagnostic criteria for eligibility: qualitative impairment in social interaction, restricted and stereotype behavior, interests and activities. Okay, so let us try to understand the diagnosis. And diagnosis को understand करने की कोशिश करते हैं. Quantitative impairment in social interaction as manifested by at least 2 of the following. Now let's see. Social interaction में आप देखते हैं पहले mark impairment in the use of multiple non-verbal behaviors such as eye-to-eye gaze, facial expression, body posture and gestures to regular social interaction. Okay, अब कहाँ पे impairment है, जैसे eye-to-eye, facial expressions में, body posture में, gestures में, जो एक social interaction की requirement है उसमें क्या है इम्पेयरमेंट पाए जाते हैं, बट कितने, इसमें अभी बताया था कि माइल्ड टू सीवियर है ना, इसमें माइल्डर फॉर्म भी है. नाउ फेलियर टू डेवलप प्योर रिलेशनशिप अप्रोप्रिएट टू डेवलपमेंटल लेवल. यस, कहाँ पे, जब आप जो है रिलेशनशिप जो है आपकी जो सेम एज ग्रुप की है वो इतनी जो है पूरी तरीके से आप जो है अब 100% जो रिलेशनशिप में नहीं आ सकते. जैसे आपकी बड़ी फ्रेंड है, ओके, राम जो है आपके कोई फ्रेंड है, रहीम है, तो वो पूरी तरीके से फ्रेंडशिप जो है उसमें नहीं आ पाते. लैक ऑफ स्पॉन्टेनियस सीकिंग टू शेयर एंजॉयमेंट, इंटरेस्ट, अचीवमेंट विद अदर्स, एग्जांपल बाय लैक ऑफ शोइंग, ब्रिंगिंग और पॉइंटिंग आउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट टू अदर पीपल. ओके, लैक ऑफ सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, जो अभी हमने बताया था, जब एक किसी को एक्सचेंज करते हैं थिंग्स फॉर लाइक फॉर म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल प्रॉफिट, वो इनमें नहीं हो पाते. ओके, यस, सी दिस पिक्चर. अननेसेसरी लाफिंग, दिस काइंड्स ऑफ बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड. नो रिस्पॉन्स इवन लाउड साउंड्स, जब नहीं सुनने का मन है नहीं सुनता है. ओके, अटैचमेंट ऑब्जेक्ट्स, यस, उनकी फेवरेट बडी टॉयज या बड़ी थिंग्स होते हैं जो कि बहुत फेवरेट होते हैं और बहुत अटैच हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ. एंड इको वर्ड्स व्हाट यू हैव सेड, दे रिपीट. लोनलीनेस, दे ऑप्ट, अकेले ही रहना पसंद करते हैं, अकेले ही रहते हैं. नो इंटरेक्शन विद अदर, नो फियर, उनको डर नहीं लगता. पेन होता है, यस, पेन मतलब फिजिकल पेन भी होता है. डर मतलब कि आप उसको समझाएंगे कि इससे प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ आपको बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकता है, बट दे आर लिस्ट बॉर्डर के नहीं होंगे, भूल जाते हैं वो. ओके, रेट सिंड्रोम,
Rett syndrome is a disorder of the nervous system that has some of the same characteristics as autism. Both diseases strike an early age, and a loss of language and social interactions are common in both diseases. Strikes, yes. Like autism, children suffering from Rett syndrome will avoid eye contact, same, just like autism, have a diminished ability to express feeling, and will exhibit purposeless hand movements such as flapping, wriggling, bringing और waving. इसमें कई बच्चे जो है आपने देखा होगा हर समय लगता है कि दे आर ट्राइंग टू क्लैप बट दे आर नॉट एबल टू क्लैप. दैट इज नॉट क्लैपिंग. वो अपने हाथ को फिंगर्स को फ्लैप कर रहा है और कभी वेव करते रहते हैं बच्चे. I'll show you the picture later on. Seizures are common in both diseases and neither has a known cure. Rett syndrome is found in females almost exclusively. The neurological deficits of autism remain stable. However, इसमें आप देखिए, however, Rett syndrome is a progressive neurological disorder whose symptoms worsen as the child gets older. इसमें जो autism में आपका जो disability impairments है वो है, ठीक है, वो स्टेबल हो जाता है. हाँ, इस बच्चे को ये दिक्कत है, उसको ये नहीं आता, उसको ये नहीं आता, एंड उसकी जो हेल्थ है ऐसे चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज ऑटिस्टिक एंड सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक. अगर डायबिटिक है वो चल रहा है, स्टेबल है, ठीक है, चलो वो एक पता चल गया. रेट सिंड्रोम में क्या होता है कि उसकी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो बढ़ती जाती है. जब बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो वो प्रोग्रेस होता रहता है, जो प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसकी. डायग्नोसिस में पीरियड ऑफ अपरेंट नॉर्मल development until 6 to 18 months. Regression, in other words, a change from normal early development into impaired abilities, diminished ability to express feelings, avoidance of eye contact, yes, same as autism. Grinding teeth, आप देखिए इसको. Loss of verbal language, yes. Purposeful hand use replaced by stereotypical hand movements such as flapping or waving, which I have mentioned here also. इसमें आप देखिए डॉक्टर एंड्रियस रेट्स, इनके ही नेम पे ही बेस ये इलनेस को नेम दिया गया था. आप इसमें देखिए रेपिटेटिव हैंड मूवमेंट्स, फ्लैपिंग, क्लैस्पिंग हैंड्स, ये आप देख सकते हैं. आपने भी कई बच्चे, अगर किसी आपके साइकोलॉजी स्टूडेंट्स में से कोई विजिट पे गए कोई स्पेशल स्कूल में, या तो यू कैन ऑब्जर्व, आप देख सकते हैं. एक्चुअल इंटरनेट एंड ऑल दिस आर डिफरेंट, बट आप एक्चुअल में जाके देखते हैं तब आपको दिखेगा कि कुछ बच्चे जो है अपनी जो फिंगर्स है, it seems like they are rubbing, but they are not rubbing their hands. It seems that they will start clapping. No, they're not clapping. अपने जो हैंड जो है फ्लैपिंग क्लैस्पिंग करते रहते हैं. ओके. और कुछ बच्चे जो है छोटे बच्चों में बहुत टाइम तक वॉक नहीं कर पाते. ओके. और इसमें मैम भी आ जाते हैं बहुत सारे. यस जैनब. मैम जैसे फ्लैपिंग और क्लैपिंग है तो इसमें फिर वो क्या करते हैं, मोटर एक्टिविटी करने के लिए मतलब कोशिश करते हैं, या वो क्योंकि उनको क्लैपिंग का, फ्लैपिंग का या वेविंग का तो इतना कोई नॉलेज नहीं रहेगी ना. दे आर ट्राइंग टू मूव. देखो, बीइंग बोर्न एज ए ह्यूमन बीइंग है ना, तो वो क्या करेंगे, द बॉडी इज ग्रोइंग. अब बॉडी है तो आप मूव करेंगे. आप कहाँ ब्रेन से आपको डायरेक्शन दे रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे बहुत सारे बलून्स लाए, छोटी सी गर्ल के सामने बहुत सारे बलून्स रख दिया. ओके. तो उसको पता नहीं है दैट इज अ टॉय. अब शी इज फैमिलियर कि बॉल है, टच किया हुआ है उसने, या उसकी मम्मा जो है, जो केयर गिवर, उसने उस बलून के साथ खूब उसको मे बी उसके सामने कुछ चलते हुए रिएक्शन जो भी है, अब डांस किया या क्या सॉन्ग को गाया, तो बच्चे ने देखा होगा समथिंग इज गोइंग ऑन. अब वो नहीं पता कि क्या है, क्या हो रहा है, ये नहीं पता, तो वो रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ स्कूल में भी हम देखते थे, लाइक पेरेंट्स, जैसे कोई लेडी टीचर आते हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग कि यस माय केयर गिवर इज हियर, आ जाता है, तो दे स्टार्ट ये चुपचाप जो ऐसे ये फ्लैपिंग कर रहे हैं अपना हैंड को, दे स्टार्ट ट्राई टू वेव एंड दे ट्राई टू मूव. ऐसा लगता है हाथ पैर जो इसके चलने लग जाते हैं कि दे ट्राई टू एक्सप्रेस. ओके.
आप एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आफ्टर एग्जामिनेशन आप जरूर विजिट करना स्पेशल स्कूल्स में। जो भी आपने यहाँ पे काउंसिल इंडिया में भी काफी सारे आपने लोग ने सीखा होगा, तो आप प्रैक्टिकल भी मैम ने करवाए होंगे काफी सारे, तो फिर आप स्पेशली आप विजिट पे भी चले जाना स्कूल्स में, स्पेशल स्कूल्स में स्पेशली। ओके, yes, grinding teeth, loss of verbal language, normal head circumference at birth followed by slowing the rate of head growth. Yes, आप हेड की जो सर्कमफ्रेंस है आपका नॉर्मली बर्थ के टाइम जितना होना चाहिए होते हैं, जब अभी जो आपकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने चेक किया था दैट टाइम नॉर्मल, एंड देन आपकी जो ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं होता। जैसे कई बच्चे हैं मैंने देखे जिनके हेड बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, अभी आपने भी आप विजिट पे जाओगे किसी स्पेशल स्कूल में, यू कैन ऑब्जर्व वेरियस काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। Purposeful hand use replaced by stereotypical hand movements such as flapping or waving. If able to walk, it is usually wide base and stiff leg. Okay, shakiness of torso and or lips, especially when upset. ये भी चीज हमने ऑब्जर्व किया है, जब अपसेट हो जाते हैं तब बच्चे जो है अब बिठाए हुए हैं व्हील, कोई बच्चे व्हील चेयर में बैठे, कोई इसको स्कूल की चेयर में बिठाया हुआ है, वेरी कंफर्टेबल चेयर, तो जो है एकदम मूव करने लग जाता है। जब उसको बताते हैं कि आप बैठोगे आप घर नहीं जाओगे, ऐसे मजाक करते हैं टीचर्स भी, तो दे डोंट अंडरस्टैंड, या जो भी है मूवमेंट करते हैं जो दे नो कि हम जो बोल रहे हैं उसको कुछ नेगेटिव या कुछ डांटने के लिए बोल रहा है, कुछ डायरेक्शन दे रहा है। ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डिक्रीज बॉडी फैट एंड मस्कुलर मास। ओके, ग्रोथ रिटार्डेशन बहुत होता है, ऑल्दो सम इंडिविजुअल्स who had these symptoms die at a young age, the majority live into adulthood। कई सारे बच्चे भी because of this abnormal growth of the head और इनकी न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज है वो बढ़ते जाते हैं, और ग्रोथ रिटार्डेशन से तो ऑब्वियसली कई बच्चे जो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ केयर, और जैसे अभी मैंने बताया था सोशली एंड इकोनॉमिकली लोअर बैकग्राउंड में कई सारे बच्चे जो है ये पाए जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू कीप देयर चाइल्ड प्रॉपरली। ओके, जो अटेंशन देना चाहिए वो नहीं दे पाते। नाउ CDD, childhood disintegrative disorder, was first described in 1908 by an educator in Vienna, Theodor Heller, who called it dementia infantilis. CDD characteristics were recognized many years before autism was described. Despite this, CDD has only recently been recognized officially and was frequently misdiagnosed in the past. ओके, वियना थियोडर हेडलर, वियना के एक एजुकेटर ने इसको डिस्क्राइब किया गया था। ओके, किस नाम से, डिमेंशिया इन्फेंटिलिस। ओके, एंड नाउ अब उसको पास्ट में मिसडायग्नोस किया गया था। नाउ चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर में क्या देखने को मिलते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विद सिमिलरिटीज टू ऑटिज्म। जब मैंने ये पॉइंट्स बोला है तो आप जरूर ये याद करिएगा, बिकॉज इट वाज एन अम्ब्रेला टर्म, एज अम्ब्रेला टर्म एंड स्पेक्ट्रम है, एंड दिस 5 टाइप्स जो है इसमें कई सारे जो कंडीशंस है दे आर ऑल सिमिलर, बट डिफरेंसेस यू हैव टू फाइंड आउट, डिफरेंसेस भी दिया गया है। ओके, इट इज differentiated from autism by a pattern of onset, its course and outcome. Yes, with CDD, children develop a condition that resembles autism, but only after a relatively prolonged period of normal neurological behavioral development. Kab tak? Usually 2 to 4 years. Followed by what? Extensive and pronounced neurological losses involving motor, language, and social skills. Okay, resemblance है autism के साथ, but कब आपकी जो डेवलपमेंट है जो कहाँ पे अब 2 to 4 years में बिहेवियरल डेवलपमेंट जो है आपको देखने को मिलता है। Accompanying the motor and the language losses, there is loss of interest in social interaction and a general loss of interest in the movement in the environment. Okay. Now loss of skills such as vocabulary is more dramatic in CDD. जब बच्चे बोल पा रहे हैं तो बाद में बोल नहीं पाते, तब कहते हैं कि बोलना ही बंद हो गया है। ऐसे केसेस भी आए, एंड दैट इज इन क्लासिकल ऑटिज्म। दिस हेल्प टू डिस्टिंग्विश द टू डिजीजेस। लॉस ऑफ स्किल्स सच एज वोकैबुलरी इज मोर ड्रामेटिक।
Okay, the etiology is unknown, but several illness of evidence suggest that CDD arises as a result of some form of central nervous pathology. The specific cause how is unknown, और इसका कोई क्योर नहीं है. CDD का भी कोई क्योर नहीं है. Okay, the child is what now what we are going to do. Upset, not responsive, ऐसे रहते हैं. Okay, now common screening tools for screening. Symptoms typically become more consistently visible by the time the child is of 3 or 4 years, 2 or 3 years. In some cases, the functional impairment related to autism may be mild and not apparent until the child starts school, after which the deficits can be pronounced when amongst their peers. Let us find out. जो सबसे common special schools में use करते हैं इंडिया में, that is Indian Scale for Assessment of Autism. ISA is an objective assessment tool for person with autism, which uses observation, clinical evaluation of behavior, testing with interaction with the subject, and also information supplemented by parents or caretaker in order to diagnose autism. जैसे कई economically background parents आते हैं तो वो बता नहीं पाते हैं तो कि क्या क्या दिक्कत है क्या क्या नहीं. इसमें भी आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में फिर हिंदी लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट किया गया है. ओके, सो दैट दे कैन गिव द रिस्पॉन्स. ओके, 40 आइटम्स जो है आप consist of 40 items rated on a 5-point scale ranging from never to 5 always. What is this? आप जो बच्चे का जो बिहेवियर है, क्वेश्चनर्स है, तो आप जो उसको रेट करना है कितना हद तक वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिलअप करने के लिए. The 40 items of ISA are divided under 6 domains. Okay, Autism Spectrum Screening Questionnaire ASSQ is a useful brief screening device for the identification of ASD in clinical setting. The SSQ consists of 27-item checklist that is completed by parents or caretakers of a child who appears to have symptom characteristics of Asperger's syndrome and other high-functioning ASD. It is a valid screening tool for children and adolescents with normal intelligence or mild mental retardation. Okay, now other CHAT. This is also very common. अब वैसे फॉरेन कंट्रीज के जो ये है इसको इंडियन वर्जन में ही कई सारे कन्वर्ट किया गया है. स्पेशली वो खुद ही कन्वर्ट करके बना देते हैं अपने अपने जो स्कूल से और एजुकेशनल ग्रुप से. ओके, इसमें आप देख दिस इज अ सिंपल स्क्रीनिंग टूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन एट 18 months of age. 18 months of छोटे से बच्चे को स्क्रीनिंग के लिए. इट हैज 2 sections, level A and B. अब A level में लेट्स सी CHAT is a self-administered questionnaire for parents with 9 yes or no questions addressing the following areas of child development: rough and tumble play, social interest, motor development, social play, pretend play, pointing to ask for something, functional play, and showing, that is what, demonstrating activities or the product of these activities to peers or parents. Okay, now in section B of the chat consists of 5 items. 5 items hai, which are recorded by observation of the children by an experienced clinician. The 5 items address the child's eye contact. जब बच्चे को जब दिखाए जाएंगे कोई आइटम्स तो उसके आई कॉन्टैक्ट देखेंगे. एबिलिटी टू फॉलो द पॉइंट. ओके, केस मॉनिटरिंग. pretend play में जैसे फॉर एग्जांपल यू एज अ क्लिनिशियन आप क्या करेंगे, एक डॉल लेंगे, उसको डॉल को खाना खिलाने के लिए या लिटाने के लिए यू विल ट्राई टू इनएक्ट. ओके, एंड दैट टाइम आप प्रिटेंड करते हैं बच्चे या नहीं करते हैं, दे विल फाइंड आउट. नाउ प्रोड्यूसिंग अ पॉइंट कॉल्ड proto declarative pointing by experts and making a tower of blocks. Yes, आप उसको blocks भी introduce करेंगे in order to find out. ओके, आप ब्लॉक को आप पॉइंट करेंगे कि कहाँ पे कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, ये बच्चे को बताया जाएंगे. ओके, नाउ यस, चाइल्ड ऑटिज्म रेटिंग स्केल्स कार्ड्स. Screening aids in evaluating a child's body movement, adaptation to change,
listening response, verbal communication, and relationship to people. It is suitable for use with children over 2 years of. इसमें आप देखिएगा ये 2 years of age के above के लिए use किए जाते हैं. The examiner observes the child and obtains relevant information from the parents. The child's behavior is rated on a scale based on deviation from the typical behavior of the child of the same age. Autism Diagnostic Interview Revised, ADIR. Okay, the ADIR is structured interview that contains over 100 items is conducted with a caregiver. It consists of 4 main factors: the child's communication. The most important part is communication, then social interaction. Okay, the repetitive behavior and एज ऑफ ऑनसेट सिम्टम. जब बच्चे के जो सिम्टम्स है जो पेरेंट्स से ऑब्जर्व किया है वो कौन सी एज से कौन सी मंथ से उन्होंने ऑब्जर्व किया है, दिस काइंड ऑफ नॉर्मलिटी. ओके, नाउ मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन. While there is no cure for autism, there are several effective intervention that can improve a child's functioning. Yes, अभी तक कोई क्योर नहीं है, but effective interventions are there. Okay, applied behavioral analysis. It involves systematic study of the child's functional challenges, which is used to create a structured behavioral plan for improving their adaptive skills and decreasing inappropriate behavior. कई सारे inappropriate behaviors होते हैं बच्चे की जो पब्लिक में एग्जिबिट करते हैं, that is not so good. और तो उस टाइम पे जैसे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं उस टाइम पे हम लोग उस बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में डन इन ग्रुप और इंडिविजुअल सेटिंग्स. दे आर डन इन ग्रुप और also individual setting. Now this intervention helps children with autism improve the ability to navigate social situations. Like for example, जब आपको उस बच्चे को आप पार्क में लेके जाते हैं तो बताते हैं कि yes you can play in the park. आप पार्क में yes if you want to interact that's good, but if you want to pull somebody's hair, किसी के बाल खींचने का मन करे, किसी के टॉय स्नैच करने का मन करे, that is wrong. And जब हम पार्क में जाएंगे दिस रूल्स आर टू बी फॉलोड, हम स्कूल में जाएंगे दिस रूल्स आर टू बी फॉलोड. ओके, सोशल स्किल ट्रेनिंग्स भी दिया जाए. स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, यस इट कैन इंप्रूव चाइल्ड स्पीच पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज. स्पीच थेरेपी भी दिए जाते हैं जो बच्चे जैसे एस्पर्गर सिंड्रोम में कई बच्चे जो है जिनकी वोकैब कम है वो बोलना चाहते हैं ताकि उनको स्पीच थेरेपी और लैंग्वेज थेरेपी दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू व्हाट to train them to express their views. कहाँ पे अपने पेरेंट्स को ओके कोई भी जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उनको एनकरेज करते हैं. ऑक्यूपेशनल थेरेपी में दिस एड्रेसेस अडैप्टिव स्किल्स डेफिसिट्स विद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एज वेल एज प्रॉब्लम्स विद हैंडराइटिंग. स्पेशल एजुकेटर्स आर वर्किंग हार्ड इसमें बच्चों को ट्रेन करने के लिए, जैसे इन एकेडमिक पार्ट that means that is what पेंटिंग हो गई बच्चे के लिए, एंड देन what अरेंजमेंट ऑफ बुक्स. एंड कभी कभी बच्चों को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, आप जाके प्लान्स को दिखाएंगे, टच कराएंगे, फील कराएंगे और आपको बताया जाएगा कि आपको ये काम करना है. एंड सी जैसे एक्सप्रेशंस जो है स्पेशल स्कूल्स में बच्चों को एक्सप्रेस कराते हैं और कैसे जैसे इमोजीज बनाते हैं पिक्चर्स पे भी. दिस इज पिक्चर टेकन फ्रॉम द इंटरनेट बट दिस ऑल आर प्रैक्टिस इन स्पेशल स्कूल्स में बच्चे को कि स्माइल, सैडनेस, एंग्री, फियर आप उसको पिक्चर्स के डायग्राम के थ्रू आप उसको बताएंगे बच्चे को एक्सप्रेस करके. एंड व्हेन दे वांट टू एक्सप्रेस अब वो उसको पैम्फलेट को उठा के वो शो कर सकते हैं. एंड द टीचर वैसे वर्षा आप टीचर को जैसे गुस्सा आ रहा है तो वो जो एंग्री वाला जो इमोजी पिक्चर है वो आप वो शो करेंगे एंड स्टूडेंट विल डू व्हाट दे विल आल्सो रिएक्ट यस मैम इज एंग्री. एंड ये आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी सोशल स्किल्स में भी बताए जाते हैं. एंड द चिल्ड्रन आर एनकरेज टू व्हाट sit in a group में बिठाने की कोशिश करते हैं so that they can interaction so that they can exchange their smile or exchange their
कुछ आप अपना कुछ इमोशंस जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग में क्या है, पेरेंट्स लर्न effective ways of responding to problematic behavior and encouraging appropriate behavior in their child. Parent support group help parents cope up with the stresses of raising a child with autism. Special education service under an individual education plan, IEP कहते हैं इसको, उसके हर स्कूल में एक फाइल होती है स्पेशल बच्चों की, तो उसमें क्या आपको बच्चे ने क्या लर्न किया, इतने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, वैसे जैसे नॉर्मल बच्चे के लिए बनाते वैसे ही IEP। Thank you for attending this session. Don't forget to like, share and subscribe so that you get regular update on more valuable sessions, and visit www.counselindia.com for free ebooks and psychology related learning.